So I am starting electromagnetic field theory. Electromagnetic field theory. I am starting unit number 1. Unit number 1 is coordinate system and transformation. Unit number 1 is coordinate system and transformation. So here in this unit, you have to study 3 types of coordinate system. First one is Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system. Then second one is cylindrical coordinate system. Then third one is spherical. Spherical coordinate system. So these 3 types of coordinate system, you have to see how the points are located in this coordinate system, how any vector is represented in this coordinate system, and also dot product and cross product, as well as del operator, divergence operator and curl operator is written. How they are written, you will see in this topics under coordinate system. And also, if you are given one coordinate system, then how you will transform into another coordinate system, that you will also see. So let's start with Cartesian coordinate system. Let's start with Cartesian coordinate system. So unit number 1, I am starting unit number 1 with Cartesian coordinate system. So the first one is Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system. Be ready with paper and pen. If मेरी आवाज अगर चले जाती है, then you contact me. आप अनम्यूट होकर मुझे बताइए कि कुछ प्रॉब्लम हो रही करके, ठीक है? अदरवाइज जरूरत नहीं है. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. So here point P, its location is represented by 3 variables: P, X, Y, Z. P, X, Y, Z. P, X, Y, Z. Now what is this X, Y, Z? Distances क्या क्या हैं? X, Y, Z कहाँ से क्या होते हैं? That you have to see. So in Cartesian system, we are studying orthogonal coordinate system. Orthogonal. In orthogonal coordinate system, every axis are perpendicular with each other. ठीक है? तो x axis will be perpendicular to y axis and y axis will be perpendicular to z axis. So this is the x axis, this is the y axis, this is the z axis. This is the z axis. ठीक है? So all 3 axes are perpendicular with each other. So here point P, that we are representing this as x, y, z. This point P, it is located here. This point P is here, and all point at which all coordinate axes meet, we are calling it as origin. So this is O is the origin. It is 0, 0, 0. X coordinate is 0, y coordinate is 0, and z coordinate is 0. So what is here x, y, and z? So this is the xy plane. So here I am constituting one plane. This is xy plane. This is xy plane. So this is xy plane. This is xy plane. So z, what is z? Z, you draw a perpendicular line from point P and drop it to plane xy. Suppose it is meeting at point this L. Then this P and L will be Z.
this z variable is that is the height of point P from xy plane. So this is the height of point P from xy plane. You represent like this. So z is the height of that point P. कोई point P है ऐसे इस तरह से, जैसे जिस प्लेन में मैं खड़ा हुआ हूँ उसको हम बोल सकते हैं xy प्लेन, और ये जो प्लेन है आप yz प्लेन बोल सकते हैं जो ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप z है that is the height हो गया, height of point P from xy plane. Then from L, जिस जो प्लेन है, जो प्लेन में जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको आप परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करेंगे टुवर्ड्स y एक्सिस और इधर टुवर्ड्स x एक्सिस, इस तरह से। तो नाउ सपोज है ये मिल रहा है आपका m और n पॉइंट, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। So you see that this LM that will be x and OM that will be x, and here ON will be y, and also here ML that will be equal to y. So what is next now? So OM is equal to, this is LN that will be equal to x. तो ये x जो है लेंथ है, that is OM and LN that will be equal to xO, and what will be y? And what will be y? So y will be OM and this will be equal to also ML या LM that is equal to y. So in this way you write value of y. So in this fashion we represent the position of point P in Cartesian system, that is represented by x, y, z. Z is what? Z is the height of that point from x, y plane, ठीक है। And ये जो है LN parallel to x axis and towards OM that is towards x axis, that LM will be equal to OM and that will be equal to x. तो ये आपका x हो गया और ये y। तो इस तरह से y z रिप्रेजेंटेशन होता है इन कार्टेशियन सिस्टम। कोई भी पोजीशन है, पॉइंट P है, उसका आप उस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। कोई भी पॉइंट P है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ आप लोगों ने जो यूनिट वेक्टर्स पढ़ा है i j k इस तरह से पढ़ा हुआ है, टुवर्ड्स x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब ये जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अब हम ऐसा नहीं शो करते। अब हम यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर्स है उसको हम लोग ax और ay और इसको az ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर जो है रिप्रेजेंटेशन है आपका टुवर्ड्स x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है, वो हम जो है उसको सब्सक्रिप्ट x y z और ये लेटर स्मॉल लेटर a से हम रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट i j k। इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। दिस नोटेशन i j k we will not use here in electromagnetic field theory, we will not use that, remember that, ठीक है। तो we are moving towards now वेक्टर वगैरह कैसे डिफाइन करेंगे। अभी एक पोजीशन है, पॉइंट P है इन कार्टेशियन सिस्टम, उसको कैसे लोकेट किया गया था, ठीक है। सो दिस इज द P, दिस इज x y z and this is origin 0, ठीक है। So now I am calling this towards x axis unit vectors are ax, ay and az इस तरह से। So now I am representing vector। अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें? वेक्टर, you know what is a vector? Vector has both magnitude as well as direction। Vector है तो it has magnitude as well as direction। तो any vector, suppose any vector we take it as a vector, then it has magnitude a, its magnitude a, इसको हम लोग mod a वेक्टर लिखते हैं। रिमेंबर कभी भी जो मैं वेक्टर लिखूंगा तो उसको मैं हमेशा एरो लगाऊंगा उसमें, एरो, जैसे फॉर एग्जांपल a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, लाइक दैट, इस तरह से हमेशा मैं उसमें एरो लगाऊंगा। और अगर एरो नहीं लगाया है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड, तो सिंपल मैं उसको लिखूंगा a b c इस तरह से मैग्नीट्यूड, जो कि हम इसको a वेक्टर इसका मॉड वैल्यू ऐसे लिखेंगे,
अगर मैंने एरो नहीं लगाया है मींस दैट इट्स ए मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर हम रिप्रेजेंट करते हैं इस मैग्नीट्यूड, और उसका जो डायरेक्शन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर ए, स्मॉल ए। तो ये स्मॉल ए जो है, दिस ए दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। एंड व्हाट वाज यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ए वेक्टर जो ए वेक्टर है अलोंग दिस ए वेक्टर, स्मॉल जो ए है यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं, क्यों होता है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है दैट इज 1 होता है, एंड ए वैल्यू ए स्मॉल ए यू राइट इट एज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, दिस ए वेक्टर दैट इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। सो बेसिकली ए वेक्टर कोई है, इसका मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस व्हाट यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर एंड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर। कोई भी एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन अ कार्टेशियन सिस्टम, इन अ कार्टेशियन सिस्टम हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो इस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंट किया हमने। नाउ सपोज है अब हम एक लाइन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, लाइन वेक्टर, लाइन वेक्टर जो कि दो पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रा करते हैं, सपोज हियर O है और P है, दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, देन फ्रॉम O to P, O to P, OP वेक्टर ऐसा। तो व्हाट विल बी दिस वैल्यू? OP वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो लाइन वेक्टर, दिस इज OP वेक्टर is equal to, you write here like that। अगर ये x y z है, ओरिजिन है, तो इसको 0 0 0 लिखते हैं हम, ठीक है? तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं x2 minus x1, so x minus 0 ax plus y minus 0 ay plus z minus 0 az। So OP vector it is written like this, x ax plus y ay plus ZAJ. You write like this, and this is value is equal to R vector. If you represent this R vector, you can write like this R vector. So this is the value of R vector, where AX, AY, and AZ is AZ are what? AX, AY unit vectors है, हमारे x axis, y axis है, z axis respectively. वो जो है unit vectors हैं AX, AY, AZ. ठीक है? Then how you calculate magnitude of R? So this is equal to under root of x component का square plus y component का square plus z. So this is the OP vector का magnitude. So that is OP magnitude. And remember that here OP vector is not equal to PO vector. So this is a minus लगाना पड़ेगा, minus. So ये OP है, from O to P जा रहे हैं, और P to अगर O जाएंगे then this will be PO vector। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है? then you can calculate also unit vector along R vector। so इधर भी आप unit vector कैलकुलेट कर सकते हैं along R direction, R vector AR। so increasing direction होता है, पॉजिटिव वैल्यूज जिधर बढ़ रही है उधर उसका डायरेक्शन लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R vector divided by simply R। R means what? Its magnitude। R is equal to this magnitude, ठीक है? so you write here that is equal to R vector, so this is x ax plus y ay plus z az, ठीक है? इस तरह से लिखेंगे, then R is nothing but under root of x square plus y square plus z। so in this fashion you can calculate unit vector, you can define unit vector like this, unit vector like this। so in Cartesian system you write any vector like this, you write any vector like this, ठीक है? इस तरह से आप लिखेंगे। Now suppose we are given two vectors, like for example here we are given R1 vector, here this is point P OP, now it's another point, suppose this is point Q, now from O to Q this OP vector that is equal to R1 vector and OQ vector
that is equal to R2 vector. R2 vector. Now the coordinates of this point is now suppose x1, y1, z1, and here it is x2, y2, z2. x2, y2, z2. So origin 0, 0, 0. So origin suppose, then I want to write R1 vector. So R1 vector will be, you can write that is x1 ax plus y1 ay plus z1 az. And similarly R2 vector you can write like this, that is equal to x2 ax plus y2 ay plus z2 az. Now I want to calculate line vector from P to Q. Now suppose this is R, capital R1, capital R12 vector. R12 vector. Suppose this is point 1, this is point 2. So 1 से लेके 2 तक point P से Q. So this is nothing but RPQ vector हम निकालना चाहते हैं. RPQ vector. So you will write R12 vector and it's nothing but R P से लेके Q वेक्टर that is equal to, कैसे करेंगे इसको, that is इसका आप जो x2 और फिर इधर x1 है. So this is x2 minus x1 unit vector, this is ax plus y2 minus y1, this is ay plus z2 minus z1 and this is az. इस तरह से आप लिखेंगे. So R12 vector that is equal to R12 vector from 1 से लेके 2 vector are vector that joins point 1 and 2. ठीक है. So RPQ vector is nothing but R12 vector. So this value will be x2 minus x1 ax plus y2 minus y1 ay plus z2 minus z1 az. So we can calculate its magnitude also. RPQ, it's nothing but mod of RPQ vector. So it's nothing but under root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square plus z2 minus z1 का whole square. So this will be the value of RPQ magnitude. जो line है RPQ या R12, its magnitude will be like this. We can also calculate unit vectors along this vector. ठीक है. So that is A12. So that is A12. You can calculate A12. It's nothing but R12 vector divided by its magnitude R12. इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. A12 is equal to R12 vector divided by R12. So this is the vector representation in Cartesian system. Line vector, vector representation in Cartesian system. Cartesian system में आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं. Now next we are going to see dot product of two vectors. अभी हमने देखा कि आप जो है कार्टेशियन सिस्टम में कैसे कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर का जो हमने यहाँ पे देखा उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. कोई लाइन वेक्टर है, दो पॉइंट है जिसको ज्वाइन कर रहा है, कोई लाइन दो पॉइंट को, उस लाइन वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, A to D, B to A, इस तरह से आप कैसे लिखोगे वो हमने देखा. ठीक है. अब हम देखने जा रहे हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. Scalar or dot product of two vectors. Scalar or dot product of two vectors. Scalar or dot product of two vectors. ये हम देखने जा रहे हैं. अभी तक जो बताया क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? अंतिम मुझे कोई बोलिए क्लियर हुआ? कैसे कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन सिस्टम में? क्लियर हुआ? हेलो, सुन रहे हैं? यस सर. तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? क्लियर? यस सर. क्लियर? आगे हेलो, आगे बढ़े? यस सर. यस सर. आगे चले ना? यस सर. देखिए ब्लैक बोर्ड टीचिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेक्ट करना है.
ठीक है, हालांकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल टू यू आल्सो, लेकिन आपको कॉपी पेन लेके साथ साथ करते जाना है, देन तभी यूजफुल है, अदरवाइज यू विल नॉट ग्रास्प एनीथिंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, करते जाना है उसको। ठीक, नाउ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है, मैं बताने जा रहा हूँ। यू कैन हैव क्वेश्चन ऑन दिस इन फाइनल एग्जाम, मेन सेमेस्टर एग्जाम। सो टू वेक्टर्स सपोज है, टू वेक्टर्स जो हमें दिए गए हैं। नाउ सपोज टू वेक्टर्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर दिए हैं। नाउ सपोज दिस इज अ ए वेक्टर इज लाइक हियर ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। नाउ सपोज एंगल बिटवीन देम इज थीटा। दो थीटा जो है याद रखिएगा ये स्मॉल एंगल होता है, स्मॉल एंगल बिटवीन टू, दोनों के बीच ए और बी वेक्टर का जो है स्मॉल एंगल वो रहता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर सपोज दोनों के बीच एंगल है थीटा, नॉट दिस एंगल, यहां से यहां ये वाला नहीं, इसमें यहां से यहां ऐसा, ये दिस इज नॉट एंगल, है ना, ये एंगल नहीं है थीटा। तो यहां पर सपोज यू आर गिवन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, ax प्लस ay प्लस az। ठीक है, ये जो है आपका यूनिट वेक्टर्स हो गए, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, और इसका x कंपोनेंट हो गया a का, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। तो इस तरह से आप इसको लिखते हैं। नाउ b वेक्टर है, तो इस तरह से आप लिखेंगे इसका x कंपोनेंट यूनिट वेक्टर ax, y कंपोनेंट यूनिट वेक्टर ay प्लस z कंपोनेंट। इस तरह से आप b वेक्टर को रिप्रेजेंट कर, ऐसा दो वेक्टर आपको दिया हुआ है ना, ऐसा इस तरह से आपको दो वेक्टर दिया हुआ है। तो हम जो है डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट आप टू वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए वेक्टर, और ये डॉट है, रिमेंबर डॉट, बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट, यहां पे ये लिखिएगा, ये डॉट डॉट देखना है, पॉइंट जैसे बनाया है इसको बनाना है। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इट्स रिटन लाइक दिस, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन जो बी वेक्टर बन रहा है उसको इस तरह से लिखते हैं। सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट इज a डॉट b इज इक्वल टू a वेक्टर magnitude b vector magnitude cos theta. So a vector dot b vector is equal to simply a का magnitude a, b इस तरह से लिखना है। इसको डॉट स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? व्हाट इज स्केलर? अपनी जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है दैट इज स्केलर। लाइक क्वांटिटी मिलेगा, वेक्टर को डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो a डॉट b डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं दो वेक्टर का तो स्केलर क्वांटिटी जनरेट होता है, ए बी cos थीटा, डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, आप जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आप उसको निकाल सकते हैं। अब दूसरा जो चीज था जो जनरली एग्जाम में पूछते हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्लियर हो गया, a डॉट b वेक्टर दैट इज इक्वल टू a b cos थीटा, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन दीस टू। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब हम आगे चलते हैं, हमें जो क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे फर्स्ट है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर। क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर क्या होता है। तो इसका देखिए, ये जो हम इधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं b वेक्टर को a के तरफ एलॉन्ग हमने प्रोजेक्ट किया, तो ये जो लेंथ है उसको स्केलर प्रोजेक्शन कहेंगे, दैट विल बी b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, इट्स नथिंग बट b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ऐसा।
So this is equal to b cos theta लिखते हैं इसको, और अदर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं b cos theta. So this is b cos theta is nothing but, आप इसको ऐसे लिखेंगे b वेक्टर डॉट है और फिर यूनिट वेक्टर्स अलोंग a वेक्टर. So इधर है, सपोज है a वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर इज a. तो ये a जो है that is the unit vector along a vector. A small a और कैपिटल A सबस्क्रिप्ट में बनाए हैं यूनिट वेक्टर along a वेक्टर. तो ये आप इसको इस तरह से लिखते हैं b cos theta is equal to, so b cos theta that is the scalar projection of b vector on a vector, you write like this. आप इसको ऐसे, क्योंकि ये b dot a और a ऐसे लिखे हैं, ठीक है. So where a that is the unit vector along a vector is written as a vector and divided by its magnitude. हम ऐसा लिख सकते हैं a vector divided by its magnitude, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है. a स्मॉल है फिर कैपिटल है, मतलब ये यूनिट वेक्टर along a vector. तो इसको आप लिखेंगे, so this will be b vector dot a vector divided by a. So ये आ गया आपके पास a vector dot b vector, so this is divided by a. तो ये हो गया स्केलर प्रोजेक्शन की वैल्यू. So this is the scalar projection value. Scalar projection of b vector on a vector is written like this: a dot b vector upon a, magnitude of a. ठीक है, this is the scalar projection हो गया a dot b vector. A dot b vector. And now remember that a dot b vector, when you write a dot b vector, you will get this value is equal to ax bx plus this x component का multiplication plus y component का multiplication plus z component का multiplication. इस तरह से आता है. Because ये ऐसा इसलिए हुआ because ax dot ax that is 1, x dot ax, इसको अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मैग्नीट्यूड एंड cos, क्योंकि सेम एक्सिस से ले रहे हैं तो 0, सो दैट इज 1. और अगर मैं इसी को करूं ax dot ay, सो दैट विल बी इक्वल टू 0. क्यों 0 हुआ? बिकॉज़ ax मैग्नीट्यूड ay मैग्नीट्यूड एंड x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में कितना होता है? दैट इज 90 डिग्री. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस. तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, and this one is also 90 degree. So ax dot ay that will be equal to 0. Similarly ay dot az that is equal to also 0. ठीक है, तो ये आप ध्यान लीजिए कि in Cartesian system ax dot ax that is equal to ay dot ay and that is equal to az dot az that is equal to 1. Ax dot x, ay dot ay and az dot az that will be equal to 1 you will get, and ax dot ay that is ay dot az and that is ax dot az that is equal to 0. ये सब 0 रहेंगे, ये आपको याद रखना है. सो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सेम के साथ आपका 1 आ जाएगा. x डॉट जो है x डॉट ax जब करेंगे that is 1, ay dot ay that is again 1, az dot az that is again 1. तो इसको ध्यान रखना है आपको. और ax dot ay क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, कैसे बोल सकते हैं? उसका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, if the dot product of two vectors are 0, then we can conclude that both the vectors are perpendicular. ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है स्केलर प्रोजेक्शन निकालते हैं, स्केलर प्रोजेक्शन. नाउ कमिंग टू वेक्टर प्रोजेक्शन. Now coming to the vector projection. क्लियर हुआ स्केलर प्रोजेक्शन कैसे निकालना है? क्लियर टू एवरीवन? स्केलर प्रोजेक्शन होगा दैट इज b वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर से along a वेक्टर जो है. ठीक है. नाउ सेकंड वन वी आर गोइंग टू सी वेक्टर प्रोजेक्शन.
So vector projection of B vector on A vector या along A vector. Vector projection of B vector on A vector that is written as, ये जो B vector है इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यूनिट वेक्टर्स ऑफ A, तो A और इसी को फिर हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसा. So in this way you will write vector projection. वेक्टर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन क्या है, ये टर्म आएगा सिर्फ. वेक्टर में आप सिंपली यहाँ पे यूनिट वेक्टर से को लिख देंगे. ठीक है. सो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड ए यूनिट वेक्टर्स अलोंग ए वेक्टर. हम कैसे लिखते हैं, दैट इज ए वेक्टर फिर डिवाइडेड बाय ए है और यहाँ पे ए है फिर यूनिट वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए है. ठीक है. तो नीचे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस क्वांटिटी वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर यू राइट लाइक a वेक्टर डॉट b वेक्टर and this is a vector and simply this is a square. So this is the vector projection. So this is the vector projection. Vector projection of b vector on a vector. So this is the way to write this. And remember that commutative होता है. Dot products are commutative. Dot products are commutative. ठीक है. A vector dot B vector and that is equal to B vector dot A vector होता है ऐसा. Remember that. तो इसीलिए A dot B जहां पर है वहां पर मैं B dot A vector कर सकता हूं. Remember. ठीक है. तो क्लियर है आपको कैसे जो है स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का यूज कैसे देखे अपन ने प्रोजेक्शन निकालने के लिए, स्केलर और वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हम इसका स्मॉल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आ सकता है. पहले पैटर्न 2 से 1 का था तो 2 मार्क आता था. अब आप लोगों को पैटर्न जो रहेगा 4 और 8 का रहता है. तो 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट और एप्लीकेशन. सो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट का क्या यूज है, ये आ चुका है पहले भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में. व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. तो पहला है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. दो वेक्टर के बीच, टू वेक्टर्स के बीच जो है आप जो है एंगल निकाल सकते हैं. दूसरा टू फाइंड वर्क डन इन मूविंग चार्ज. एक चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन लगता है उसको आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू F डॉट dl. इसका इंटीग्रेशन में लिखते हैं तो यहाँ पे डॉट लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट वर्क डन W. एंड इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं और B पॉइंट से लेके A पॉइंट तक ले जाते हैं. सो दैट इज Q E डॉट dl ऐसा करके भी लिखते हैं. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्योंकि EMF पढ़ रहे हैं तो हम जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे. सो टू फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए उसका एप्लीकेशन होता है. थर्ड वन आप बोल सकते हो टू फाइंड स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर. जैसे अभी देखा दो वेक्टर दिए हैं, सपोज यू आर गिवन टू वेक्टर्स B वेक्टर एंड A वेक्टर, then how you can calculate scalar and vector projection of two vector. ठीक है. देखा तो ये एप्लीकेशन हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन दिस, जिसमें जनरली हम लोग को एंगल निकालना है, स्केलर और वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना ऐसा पूछते हैं. ठीक है. तो ये आपका हेड की बुक है, हेड की बुक से हम लोग है सॉल्व करने जा रहे हैं
आपको पूरा डिक्टेट नहीं कर रहा हूं मैं। ये है D1.3, दिस इज D प्रॉब्लम 1.3 एग्जांपल है, ये है। ठीक है, इसमें क्या किया हुआ है, इन दिस आप क्वेश्चन चाहे तो लिख सकते हैं या देख सकते हैं बुक में, या ब्रीफली मैं यहीं पे बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। इसमें ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, फुट साइड्स आर गिवन, है ना। तो यहां पर है, मैं क्वेश्चन को यहीं पे ब्लैक बोर्ड में ब्रीफ में शार्ट में लिख रहा हूं। 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगुलर आर A, B and C, ठीक है। 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगुलर आर। ए इसका कोऑर्डिनेट दिया है अपने को 6 -1 2, B का दिया अपने को -2 3 -4, और C का दिया अपने को, C दिया हुआ अपने को -3 1 and 5। ठीक है, तो आपको 3 वर्टिसेस दिया है ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसमें 3 वर्टिसेस A B C दिया है। इस तरह से आप लोकेट कर सकते हैं। ये 3 बना लीजिए इसको इस तरह से। तो ये A है वर्टिसेस, एक A हो गया, फिर ये B है और ये C, 3 वर्टिसेस। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप देखिए, जो डिफरेंट क्वांटिटीज है पूछा जा रहा है वो क्या है, तो फाइंड। ठीक है, ए पार्ट में बोल रहा है कि आप आर ए बी वेक्टर निकाल दीजिए। फाइंड आर ए बी वेक्टर, मतलब लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए से बी, यहां पे ऐसा ए से बी, सो दिस इज आर ए बी वेक्टर निकाल दीजिए। तो इसको बनाते जाइए आप लोग कॉपी में, है ना। आर ए बी निकालना है, सो दिस इज आर ए बी। ठीक है, ए से लेके बी, आर ए बी वेक्टर। ए का जो है, अगेन यहाँ पे हम वर्टिसेस जो है इसका कोऑर्डिनेट जो वेरिएबल है लिख लेते हैं 6 -1 2, 6 -1 एंड 2। बी है -2 3 -4, और सी जो है -3 1 एंड 5। सी है -3 1 एंड 5। तो ये कह रहा है आर ए बी निकाल दीजिए। तो आर ए बी बताया कैसे करना है, दिस इज आर ए बी वेक्टर। आर ए बी वेक्टर कैसे करेंगे, देखिए ए से लेके बी, है ना। तो ये आप x2 y2 z2 का लीजिए, इसको x1 y1 z1 और इसको x3 y3 z3। तो आपको क्या करना है, x कोऑर्डिनेट को b का a से रिड्यूस करना है, y का वैसे ही a से आपका जो कोऑर्डिनेट है उसको रिड्यूस करना है, इस तरह से समान लिखना है। तो आर ए बी वेक्टर कैसे रहेगा, आप देखिए मैं लिख रहा हूं -2, दिस इज x2, -6, इसको ax, ऐसा यूनिट वेक्टर से लाऊं x एक्सिस, यूनिट वेक्टर से लाऊं ऐसे लिखूंगा, प्लस अब y कंपोनेंट को लिखना है, सो दैट इज 3। उधर क्योंकि मैं a से b में जा रहा हूं, तो b के कोऑर्डिनेट को पहले लिखूंगा, y कोऑर्डिनेट है 3, है ना। फिर इसको माइनस करूंगा तो -1 ये +1 होगा, सो दैट इज 3 + 1, ये हो जाएगा a1 प्लस। अब फिर ब्रैकेट में फिर z को मैं रिड्यूस कर दूंगा, सो -4 -2 a। तो ये मेरे पास आ गया RAB का आंसर आ गया आपके पास। RAB वेक्टर is equal to, that is -8 ax plus 4ay minus 6 aj। ये आपका आंसर हो गया, ए पार्ट का आंसर हो गया -8 ax plus 4ay minus 6 aj। ये आपका आंसर हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे बुक का सॉल्यूशन वगैरह देखेंगे तो इसको सिंपली ब्रैकेट में लिख देता है -8 देन 4 और -6, ऐसा है, मतलब -8x 4ay -6 aj हो जाएगा। नाउ बी पार्ट सेम क्वेश्चन का बी पार्ट बोलता है कैलकुलेट RAC वेक्टर। RAC वेक्टर आप निकाल दीजिए, RAC वेक्टर। सो लाइन जॉइनिंग पॉइंट A and C, तो ये RAC वेक्टर हो गया। देखिए ऐसा RAC वेक्टर, तो आप RAC वेक्टर इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं,
-3 और इधर -6, ये हो गया आपका -9ax हो गया, ठीक है। फिर +1, फिर -3 हो गया +2ay हो गया, प्लस here 5 फिर -2, so that is 3aj। तो ये आपका आ गया RAC वेक्टर, so that is -9ax + 2ay + 3az। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, that is -9ax 2ay and 3az, -9 2 3, ऐसा आप उसको लिख सकते हैं। तो ये उसका आंसर हो गया बी पार्ट का। नाउ सी पार्ट कह रहा है एंगल थीटा BAC एट वर्टेक्स A, थीटा BAC एट A पे हम निकालिए, है ना। तो ये क्या है, थीटा BAC एट A, मतलब ये एंगल, दिस इज थीटा BAC, ठीक है, थीटा BAC। तो क्या है देखिएगा, ये एंगल क्या है, दो वेक्टर के बीच बन रहा है, RAC वेक्टर और RAB के वेक्टर के बीच में। तो अभी हमने बताया था cos कैसे निकालना है, तो cos थीटा BAC इज इक्वल टू, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, दैट इज व्हाट, RAB वेक्टर डॉट RAC वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो RAC इनटू AB पहले लिख लीजिए, अब बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो RAB एंड देन RAC, उसका मैग्नीट्यूड, दोनों कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे, ठीक है। सो RAB और RAC का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं इसको, x कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे ऐसे, तो 8 × 9 72 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये प्लस, और फिर इधर आपका जो है यहां पे देखिएगा 4 और 2, तो ये हो गया 4 × 2 8 हो गया, 4 × 2 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग y कंपोनेंट को, फिर यहां पर तो ये -18 हो गया ऐसा, that is divided by RAB and RAC। तो RAB क्या होगा, that is √8² + 4² + 6², जो RAB है मैग्नीट्यूड ऑफ RAB वेक्टर, और इसका जो आ जाएगा 9² + 2² + 3², इस तरह से। तो ये जो क्वांटिटी है न्यूमरेटर में आपका 62 आएगा और डिनोमिनेटर में आप निकाल लोगे, ठीक है। तो आप जब इसको निकालेंगे ये पूरी क्वांटिटीज को, तो cos का एक वैल्यू आएगा, उसको आप इन्वर्स कर दीजिए, ठीक है, आप उसको इन्वर्स कर दीजिए। तो यू विल हैव एंगल, ठीक है। तो आप जो भी वैल्यू आएगा उसको ऐसे करेंगे, थीटा BAC इज इक्वल टू cos इनवर्स, यहां पे जो भी वैल्यू आया, सो दैट इज थीटा BAC जो पूछा गया है, दैट यू विल गेट इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 53.6 डिग्री, ये आ जाएगा, ठीक है, 53.6 डिग्री ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, लास्ट है, वो पूछ रहा है D, that is the vector projection of RAB vector on RAC वेक्टर पूछ रहा है, ठीक है, RAB वेक्टर on RAC वेक्टर पूछ रहा है। तो हम कर सकते हैं इसको, क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, ये जो चाहिए हमको, जो वेक्टर प्रोजेक्शन चाहिए, दैट इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, RAB का चाहिए इस पे RAC पे, तो RAB वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर है AC वेक्टर ऐसा, और इसका फिर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे थे AC ऐसा, सो दिस इज द यूनिट वेक्टर, ये जो है AAC, दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग AC वेक्टर, है ना, AC वेक्टर दैट इज RAC जो वेक्टर है, इधर ये यूनिट वेक्टर अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो व्हाट इज दिस AAC इज इक्वल टू, दैट इज व्हाट, RAC वेक्टर डिवाइडेड बाय RAC, ठीक है। तो ये जो वैल्यू चाहिए, डिजायर्ड वैल्यू,
दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे आर ए बी वेक्टर डॉट आर ए सी वेक्टर, और ये लिखोगे आप आर ए सी वेक्टर, और नीचे आर ए सी है, यहाँ पे क्या आएगा, इसकी भी वैल्यू आर ए सी, तो यहाँ पे आ जाएगा आर ए सी का स्क्वायर ऐसे। तो ये वैल्यूज आप कैलकुलेट किए अभी, आर ए बी डॉट आर ए सी देखिएगा यहाँ पे 62 समथिंग आ रहा है, ये 62 लिख देंगे। आर ए सी आपने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, दैट इज -23 है ना, -23 कैलकुलेट किया था। यहाँ पे सब वैल्यू आप रख दीजिए और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी रख दीजिए, तो हमें जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वैल्यू भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू सबको रखनी है, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, सब कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पर ये वैल्यूज है पूरी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, ऑल वैल्यूज आर कैलकुलेटेड हियर। ठीक है, सो ये जो हमें चाहिए डिजायर्ड वैल्यू दैट इज इक्वल टू, जब आप पूरा ये जो वैल्यू 62 समथिंग आ रहा था और आरएसी वेक्टर हमने निकाला था यहाँ पे, उसकी वैल्यू रखेंगे और आरएसी का मैग्नीट्यूड भी रख देंगे, उसका स्क्वायर की वैल्यू। सो यू विल गेट दिस वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू इज -5.94 ax प्लस 1.319 ay plus 1.979 a. This will be the required answer. ये जो हमें चाहिए था, that is the vector, जो हम बोल रहे थे, this is the vector projection of R AB vector on RAC. ये आ गया। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट का यूज देखा, डॉट प्रोडक्ट पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं ये हमने देखा। तो इस तरीके से आप जो है स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हो, उसका यूज देखा। इस आप जो है वेक्टर प्रोजेक्शन आप एक वेक्टर का दूसरे में कैसे निकालना है दैट यूज। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, तो कार्टेशियन सिस्टम में जैसे हम बात कर रहे हैं, है ना, कार्टेशियन सिस्टम में अभी बात हो रही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो x और y और z की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या हो सकती है। तो ये x जो है माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक वेरी कर सकता है, x1 y और z भी। इस तरह से आप सिलेंड्रिकल में जाएंगे तो अलग रहेगा, वहां पे जो वेरिएबल रहेंगे रो 5 z, तो रो है वो 0 से इनफाइनाइट वेरी करेगा, है ना। 5 जो है 0 से 2 पाई तक वेरी करता है, और z जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो सकता है। तो हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्सटेंशन है वेरिएबल का, वो बता रहे हैं। तो x y z ऑल दिस थ्री कैन बी मैक्सिमम वैल्यू से जो है मिनिमम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक हो सकते हैं उसकी वैल्यू, इसको याद रखना। तो ये कार्टेशियन सिस्टम हुआ। कैसे हम कोई भी पॉइंट P है उसको लोकेट करते हैं, x y z क्या है, मतलब जैसे हमने लिखा 2 3 4, तो वो 2 3 4 क्या है वो आपको बताया, 2 3 4 क्या है, x y z क्या है। फिर कोई भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ये बताया आपको। फिर लाइन वेक्टर लिखना बताया, फिर दो वेक्टर दिए उसका डॉट प्रोडक्ट लिखना बताया, फिर उसका स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन एक का दूसरे वेक्टर पे बताया, है ना। एप्लीकेशन भी बताया आपको, तो एग्जाम में एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट का क्या एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से हमारा ये क्लास जो है आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। सो दैट यू विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अब बाहर आती है अटेंडेंस की, तो आप लोग चैट बॉक्स में पहले ए सेक्शन वाले फर्स्ट 1 से लेके 10 इस तरह से आप लोग स्टार्ट करते जाइए।